Yuti welcoming all of you to the first live session by Gujarat SME MSME Council of Women Indian Chamber of Commerce and Industries, that is WICI. First of all, let me have an opportunity to thank our founder president, Dr. Harbeen Arora, for ideating such a wonderful concept of forming a national business chamber for women with a vision to boost and build women entrepreneurship and to empower women by getting them together on a global platform. With the support, motivation, guidance of all our council members and senior mentors, we are heading towards our first live session with our today's guest, Dr. Trilok Sharma. Dr. Trilok Sharma is a well-known corporate trainer and management consultant. He is also a reputed personality in the field of education and journalism. Dr. Sharma is the executive director of Vocademics. Vocademics is a multi-speciality training and skill development platform, extending its services pan-India and also across the globe. The interesting fact about Dr. Sharma is the Forbes Middle East had recognized Dr. Sharma as one of the top 50 Indian leaders in Arab world in the category of CEO for continuous 3 years. Yes, that is 2014, 15 and 16. We are honored and privileged to have Dr. Trilok Sharma with us. Welcome, Dr. Sharma. Thank you very much for this wonderful introduction, which I really not deserve to. Of course, you deserve. It is our honor that you are here with us. Thank you, ma'am. Thank you very much. Yeah. So we are good to go with our today's subject. The subject is as interesting as the profile of Dr. Sharma. Motivation. Motivation is a topic that is essential for all of us. We all know how it feels when we are not motivated. We procrastinate, leave work unfinished, and often become drained of energy when doing activities we do not feel naturally in sync with. But the good part is, all of us have motivators, which can be defined as those needs that must be met to get a sense of satisfaction from life. In today's session, we will try to understand what those needs are. How can we identify various needs? What top motivators we have for us and what motivators are on the bottom, and how we can correlate the importance of these motivators at workplace and at home. Our guest speaker would try to cover as much topic as possible within the time limit. Viewers, you can make the session more interesting by asking questions and initiating discussion and conversation through comments. So we are good to go. Over to you, Dr. Sharma. Thank you very much, Yuti ma'am. Yes, you said very well that motivation and motivators, these two words have great relationship with our day-to-day life. Every time we hear these words here and there, we ourselves use these words when we are talking to our children, when we are talking to our peers, when we are talking to our team members, and even sometimes we are talking to our friends and relatives. So, yes, motivation and motivators, these two things are little different but interconnected. Every time when we listen any talk or any leadership class, I have heard all the gurus talking about setting up the goals and achieve the goals. But I felt very bad after attending so many classes that everybody is, guiding us, do like this, do like that, do like this. But how was missing. Nobody tells us how we can do it. So today we will be trying to find out the answer to this how.
and what. Great. Great. So when we talk about the goal setting and achieving success in our life, normally we are introduced with four steps, four stages. One is decide what you want, means identify your goal in your life, and there uh, get other people out of your mind. Think about yourself only, because you have to achieve your goal. Other people may or may not help you. So this is step number one. Then step number two, believe you can do it. If you believe you can do it, you can. If you believe you cannot do it, you cannot. As simple as that. So use the power of your unconscious mind. This is the second stage, and second step we are always being taught. Third stage is plan the success. Plan the success, plan for success, or make your goals smart. And every time we have heard this definition of SMART. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic, T stands for time bound. But again, the question is the fourth stage, which is the last one. और हिंदी में कहावत है, चूका घन एरन पे पड़ता है. मीन्स किसी लोहार का अगर आपने वर्कशॉप देखा हो तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट पे जो हथौड़ा मारा जा रहा है वो अगर चूक जाए तो जो एक बड़ा सा बेस होता है लोहे का जिसको एरन बोलते हैं उस पे जाके गिरता है. एंड दैट इज स्टे मोटिवेटेड. लास्ट में आके वो आपको छोड़ देते हैं कि भाई अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो स्टे मोटिवेटेड. Sir, how to stay motivated? Read good books. Follow the life of successful people. Do hard work. And so many other suggestions. And we are left with our excuses. I want to do that, but I don't have time. I want to do that. I want to read books, but I can't read books. When I start reading book, I fell asleep. I want to make my daily routine systematic, but I can't do it because in early morning, I feel good while sleeping. I can't wake up. So this but stops everything. So friend, I have a question here for all the audience. How many buts you face in your day-to-day life? But I don't have time. But I can't wait for success. But I can't deal with these people. But I don't have money. But he is impossible. But it is not possible. So many buts are there in our life. And these buts are the biggest hurdle of our success. How to remove, how to get rid of these buts? Because if we don't deal with these buts on a specific time at an early stage, our life will become but only. So here comes the role of motivators. There must be something which keep us moving. There must be something which keep us alive. There should be something which keep us running. मुझे 5 बजे उठ के दौड़ने जाना है तो जाना है. There should be something. Again, but मैं चाहती तो हूं, पर क्या करूं? My company has a lot of good infrastructure. My targets are well defined. My team is competent, but we are not able to achieve the targets. Why? पता नहीं, कहीं कुछ तो गड़बड़ है.
और ये जो कुछ तो गड़बड़ है वो केवल सीआईडी सीरियल तक सीमित नहीं है, वो हमारी लाइफ में भी घुसा हुआ है, लेकिन हम उसको या तो अनदेखा कर देते हैं या उसको पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते। वी नेवर ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इट इज सो, हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ इट। सो बिफोर वी मूव अहेड, I just want to share with all of my audience today that in this session we are not going to discuss anybody's biological needs. कहीं ऐसा नहीं समझ में आ जाए कि भाई हम जिन 9 चीजों की जरूरत कर रहे हैं उनको आप कहीं बायोलॉजिकल नीड्स से जोड़ लें तो सारा मटियामेट हो जाएगा। We are going to deal with psychological things. Our preparation to get our brain stronger, preparation to control our psychological vulnerabilities, and so on. So this session is all about your psychological needs and how you can recognize and support them in your daily life. Very Because nice. psychology is something which control our life. हमारी जो मनस्थिति होती है वही हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। अगर हम खुश होकर उठते हैं सवेरे तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। अगर हम सवेरे सवेरे खराब मूड में उठते हैं या सवेरे उठते ही किसी ने हमारा मूड खराब कर दिया तो हमारा सारा दिन खराब निकलने वाला है। फिर हमारे सामने अगर हमारा स्टाफ मेंबर आएगा तो भी, फिर हमारे सामने अगर हमारा रिलेटिव आएगा तो भी, हमारा पड़ोसी आएगा तो भी, और हमारे पड़ोस का कुत्ता आएगा तो भी, we will be shouting upon them. We will not be behaving well with them. So psychological needs are to be identified first, then to be catered secondly. It can be very helpful to be recognize your primary needs, and we will also call them your top needs. कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे टॉप ऑफ द हेड होती है कि ऐसा हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन हम ऐसा जानते नहीं है। इट हैपन्स बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इफ वी नो अ लिटिल वी कैन डू वंडर्स in our life and in the life of people around us. Very true. When these needs are met, you are happier, and more to that, you make other people happier. And if you are surrounded by happy people, फिर तो लाइफ में हैप्पीनेस के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। So some of your top needs are visible at home, while some of your top needs are visible at your office, at your workplace. कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो ऑफिस में बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका बोलने का तरीका, उनका कैरी करने का तरीका, दे आर टोटली डिफरेंट, एंड as soon as they enter the house you find a totally different person. कि अरे ये वही साहब हैं जिनसे मैं अभी दिन में ऑफिस में मिला था, वहां तो कितने शालीन, वेल बिहेव्ड, डिसिप्लिन थे, और ये घर में आते ही इनको क्या हो गया। So we need to understand that these our psychological needs are different at workplace, they are different at home, and in all we have certain psychological needs which are on the top and certain psychological needs which are playing in between and certain psychological needs are very low. तो हमने 9 ऐसी नीड्स को आइडेंटिफाई किया, 9 नीड्स, एंड वी हैव कंडक्टेड सो मेनी सर्वेज। हमारे आज जो ऑडियंस हैं उनमें से भी कुछ का हमने सर्वे किया है, and that we was will... very interesting actually, the survey. Yeah, of course. And the we could at least know that we should ask ourselves these kind of questions which till date we haven't I suppose. Exactly. So Exactly. it was very interesting survey. But Yuti ji, the problem is my experience
We have conducted almost this survey for now, including your team members. We have reached the number 783. So out of this 783, only 83 people took it seriously. Okay. Remaining all 700 people, what they did, either they felt that okay यार आ गया है तो भर के भेजना है, चलो छुट्टी करो. Right. दूसरा, उन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, जो उनको ठीक लगा उस पर टिक कर दिया. तीसरे वो कैटेगरी है जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको लगा हाँ यार मेरे को ऐसा होना चाहिए, एंड द टिक. जबकि हमने ये नहीं पूछा कि आपको कैसा होना चाहिए, हमने पूछा आप कैसे हैं. राइट. और मजेदार बात यह कि कई केसेस में तो ऐसे ऐसे हमारे पास रिजल्ट्स आए जिसमें कहा कि मैं एक बहादुर सैनिक हूं, और दूसरे सेगमेंट में उन्होंने कहा मुझे युद्ध में जाने में बहुत डर लगता है. इट इटसेल्फ शोज कि उन्होंने कितना सीरियसली इस क्वेश्चनर को भरा है. बिल्कुल बिल्कुल. So anyway, we will go to that, but before we go to that, we should understand in a brief why you should know your motivators. We were discussing why you should know your motivators, or why we should know our motivators. पहला इसका जवाब ये होगा कि भाई if we know our motivator factors, we can nurture them. We can pay more focus over them. कि यार मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, तो मुझे ऐसे लोगों का ही एक सर्कल बनाना चाहिए, चाहे वो मेरा वर्क प्लेस हो, चाहे वो मेरा घर हो. If we are surrounded by the similar quality people, our team outcome will be very very high. मान लीजिए कि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहां एक जनरल मैनेजर है who is highly motivated person. He recruits a team of 5 managers under him, very talented, highly qualified, university toppers, अच्छे institution से MBA किए हुआ. But after 3 months, it is found that the entire team's outcome is not as per the expectation. Nobody knows the reason. फिर या तो ऑफिस में वास्तु दोष ढूंढा जाता है, या कंपनी के मालिक का ग्रह नक्षत्र किसी ज्योतिषी से चेक कराया जाता है, लेकिन कभी भी जो टीम मेंबर्स हैं उनके मोटिवेशन या उनके मोटिवेशनल फैक्टर्स को चेक नहीं किया जाता. एंड इफ वी डू दैट, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. So we will discuss one by one what are all these motivators and how they can impact our work life and personal life both. We will try to understand on both the fronts. So first of all, you can better attend to your needs when you are aware of them, and this can bring you great joy and a feeling of accomplishment. You feel that yes, I'm doing something good. Whatever I am doing, I am getting positive results. Whatever I am doing, I am getting the desired outcome. मैं जो चाहता हूं वो पा रहा हूं, और ये मैं क्यों पा रहा हूं? क्योंकि मुझ में ये क्वालिटी है कि मैं एडवेंचरस हूं, इसलिए मुझे नए काम करने में कोई डर नहीं लगता. मैं कम्युनियन मेरा टॉप 3 में आता है, तो मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मुझे नए लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, मेरी टीम जल्दी से गेट एंड फील एट होम हो जाती है. तो इस तरह की चीजें. फिर दूसरा जो बड़ा फायदा है, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद द लाइफ. द अदर ग्रेट बेनिफिट दैट यू कैन कम टू अप्रिशिएट अदर पीपल मोर देन बिफोर. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोगों में होती है, नॉर्मली हम क्या होता है कि एप्रिसिएशन में हम बड़ी कंजूसी कर जाते हैं. मार्क्स लेना वो हमारी आदत है. दूसरों के किए हुए काम को भी अपना बता करके नंबर ले लेना. ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है कि मालिक ने जनरल मैनेजर को एक काम बताया, जनरल मैनेजर ने
रिलेटेड मैनेजर को वो काम बताया, मैनेजर ने अपनी टीम के थ्रू वो काम करवाया और जनरल मैनेजर को जाके रिपोर्ट किया कि सर काम हो गया। जनरल मैनेजर कॉलर ऊंचा करता हुआ गया मालिक के पास, सर आपने बोला था ना कल, आज मैंने करके दे दिया आपको। He will not say that my team has done this. He will not say that my manager and his assistants completed this job so beautifully on time that I am able to come to you and inform that work is done. तो हम तारीफ करने में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। तो अगर हम अपने मोटिवेटर्स को जानते हैं कि हमको लगता है कि मेरा मोटिवेटर्स जो है वो है कि भाई एप्रिसिएशन, कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे तो मुझे और ज्यादा काम करने का मन होता है कि यार चलो मैं काम करूंगा तो कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा। तो अगर हम ये चीज समझ जाते हैं तो हमें साथ के साथ ये चीज भी समझ में आ जाती है कि हमारे टीम के लोगों को भी तो ऐसा लगता होगा कि कोई उनको अप्रिशिएट करे तो वो ज्यादा काम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी वो आदत डेवलप हो जाएगी। देन you can instead appreciate that some people have a natural inclination towards something that you yourself do not prioritize. कई बार ऐसा होता है कि आप में वो क्षमता या गुण नहीं है जो आपके साथी में है या आपके सबॉर्डिनेट में है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते, आप उसको देखते ही नहीं है। आपके दिमाग में एक ही है कि हाँ तो ठीक है ना, काम किया तो क्या हुआ, काम करने के लिए तो रखा है, इसी बात की तो सैलरी देते हैं। ये अप्रोच अब बदलने की जरूरत है। दिस अप्रोच कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट अलाउ अस टू ग्रो। इफ यू आर अ मैनेजर और अ पेरेंट, इट इज वेरी हेल्पफुल टू नो व्हाट ट्रिगर्स अनदर पर्सन। आप अपने डे टू डे लाइफ में ये सब चीजें करते हैं लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं करते, कभी इनको अंडरलाइन नहीं करते। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत वीक है, तो वो अपने आप कुछ इनोवेटिव आइडिया सोच के उस सब्जेक्ट के प्रति उन बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिजल्ट अच्छा आता है। बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम या तो उनको किसी अच्छे टीचर के पास ट्यूशन के लिए भेजते हैं या हम उनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड महान लोगों की कहानियां सुना के प्रेरित करते हैं कि देखो उसने ऐसा किया, उसने ये सब्जेक्ट पढ़ा तो वो इतना बड़ा गणितज्ञ की बन गया, उसने साहित्य पढ़ा तो देखो उसने इतने बड़े साहित्य की रचना कर दी। तो बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं। लेकिन यही सीन अगर हमारे ऑफिस में क्रिएट होता है कि कोई हमारा एम्प्लॉई या कोई हमारा टीम मेंबर ठीक से किसी काम को नहीं पकड़ पा रहा है, तो वहां हमारा ये एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वहां हम उसको बुला के डांटते हैं, गालियां देते हैं, तो तुमको रखा किस लिए है यहाँ पे, अगर कल तक ये काम पूरा नहीं हुआ तो मैं निकाल दूंगी नौकरी से। आई डोंट नीड पीपल लाइक यू। वाई ये दोगलापन क्यों हमारे व्यवहार में, क्यों? क्योंकि हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हमारा मोटिवेटर क्या है, उसका मोटिवेटर क्या है। अगर हमारे मोटिवेटर को हम समझेंगे तो हम दूसरे के मोटिवेटर को भी समझ सकते हैं, और जब हम दूसरे के मोटिवेटर को समझना शुरू करेंगे तो हम उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, और जब हमारा व्यवहार उसके प्रति सकारात्मक होगा तो उसका जो आउटकम होगा वो भी हमेशा सकारात्मक होगा। एंड देयर आर मेनी केसेस that show how motivators can free up energy to help you to be more productive at work and have more fulfilled life in relationship at home. तो ये दोनों ही पक्षों को मजबूत करता है। Many a time we come across many business persons and many business women, those who are very successful in their business, but same extent they are fail at their family front. They do not have time to spare for their wife, children, parents, and close relatives. Why? Because they are totally involved into the business. And I tell them that your friend and family, this is your first circle of moral support system. But when we start testing the taste of success, we forget the first moral support system and we involve more with the professional support system.
हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा टैक्स कंसल्टेंट, हमारा जीएसटी कंसल्टेंट, हमारा सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, हमारा जो लाइसेंस देने वाला आईएएस ऑफिसर है वो, हमारा फाइनेंसर, हमारे बैंक का मैनेजर। हम उनके लिए ज्यादा समय निकालते हैं कंपेरेटिव टू आवर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। लेकिन जब बिजनेस में मंदी आती है, घाटा हो जाता है, या बाढ़ आती है, भूकंप आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, एक झटके में वो प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम डिसअपियर हो जाता है। एंड Absolutely. एट दैट टाइम ओनली सपोर्ट अवेलेबल टू यू इज योर फर्स्ट सर्कल ऑफ मोरल सपोर्ट सिस्टम। आपको रोने के लिए या तो अपनी पत्नी के कंधे की जरूरत पड़ती है या पिता के कंधे की जरूरत पड़ती है। आपको सहारे के लिए या तो अपने बच्चों के कंधों की जरूरत पड़ती है, या आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपको आके कहते हैं कि डोंट वरी, हम है ना तुम्हारे साथ। तो ये सपोर्ट सिस्टम तभी हम डेवलप कर पाते हैं, और डेवलप करने के बाद भी मेंटेन करना, अगेन दैट इज अ बिग चैलेंज। तो ये सब करने के लिए वी हैव 9 मोटिवेटर्स। आप लोगों ने जिन्होंने भी ये सर्वे किया होगा, लास्ट पेज पे पहुंचते पहुंचते ये समझ में आ गया होगा कि ये 9 मोटिवेटर्स हैं हमारे। बिल्कुल। तो पहला मोटिवेटर है रिकॉग्निशन। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको अगर रिकॉग्निशन मिले तो मोटिवेट होते हैं कि अरे वाह, अभी जैसे अगर मेरे को यहाँ मैसेज में मिल रहे हैं, अरे वाह डॉक्टर शर्मा आपने तो बहुत सही बात कही, तो मुझे एक एलिवेशन फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ यार मैं जो कह रहा हूँ वो बात लोगों को ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। तो कुछ लोग रिकॉग्निशन के भूखे होते हैं। आपके घर में भी हो सकते हैं, वो आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, लेकिन वहां तक जाने से पहले आप अपने आप के बारे में सोचिए। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए कि हमारे पास इन 9 में से कौन कौन से मोटिवेटर्स ऐसे हैं जो हमारे टॉप 3 में आते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो हमको सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। आज के सर्वे की बात करूं मैं तो एक फॉर्म मेरे पास ऐसा भी आया है जिसमें 9 में से 7 एरियाज ऐसे हैं जिसमें 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स हैं। ओके। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं तो बहुत बहादुर सैनिक हूं, लेकिन मुझे युद्ध में जाने से डर लगता है। राइट। तो वो होता है कई बार बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन। हमको ठीक है कि वाह भाई युति मैडम ने बोला है फॉर्म भरना है, भर दो, भेज दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मजा नहीं आता उसमें। तो उसमें वी आर मिसगाइडिंग आवरसेल्व्स ओनली, नॉट टू एनीबॉडी Yes. एल्स। Yeah, as I mentioned, it was a tool of self recognition. If you Exactly, know exactly. if uh, it was taken seriously, then it was really a tool, a very effective tool of recognition. Yes, and how it can going to help you, I will describe you. Then you will definitely would love to go for that survey again. मुझे पूरा True. विश्वास है कि कई लोग ऐसे होंगे जो अब बाद में वापस उस सर्वे को कंडक्ट करेंगे एंड दे विल गेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स। बिल्कुल। So first motivator is recognition. हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम रिकॉग्निशन मिलने से एक्टिव होते हैं, रिकॉग्निशन हमको अच्छा फील करवाता है, हमारे किसी काम को रिकॉग्निशन मिलता है तो क्या हमको वो काम और ज्यादा करने की इच्छा होती है। तो इफ यस, देन इट इज अ गुड मोटिवेटर फॉर अस। देन फ्रीडम, हमारी पर्सनालिटी किस तरीके की है, वी वांट टू वर्क विद अ टीम और वी वांट टू वर्क अलोन, we want to work in office or we want to work from distance, we want to do the set routine work or we want to do something new, we want to be guided by others or we want to become a leader। तो ये सब जानना समझना हमारे लिए जरूरी है। और जिस दिन हमको ये समझ में आ गया कि फ्रीडम वाला मोटिवेटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 में है, तो मैं अकॉर्डिंगली उसको और ज्यादा नर्चर करूंगा एंड आई विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ दैट मोटिवेटर। थर्ड मोटिवेटर होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग,
एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस। और एक्सप्रेशन केवल बोलने से नहीं होता, हम हजार तरीकों से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में और खाना ऑर्डर कर चुके हैं और खाना आ रहा है, इतनी देर में बैठे बैठे वहां जो वो पेपर नैपकिन पड़े होते हैं उस पे वो कुछ ड्राइंग बना लेते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जरा से फ्री हुए तो वो कुछ गाना गुनगुनाने लगते हैं। कई लोग ऐसे देखे होंगे आपने कि देखो 10 मिनट खाना आने में देर है तो चलो मैं बाहर थोड़ा चहलकदमी कर लेता हूं। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अगर बहुत दिनों बाद कोई दो दोस्त मिले हैं तो बड़े गले लग करके एक दूसरे से ऐसे हग करेंगे जैसे जन्म जन्म से बिछड़े हुए मिले हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं, हाय हाय, हेलो हेलो, थैंक यू थैंक यू। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को गा करके एक्सप्रेस करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पोएट्री करके एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेशन, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पर्सनालिटी में क्या ये फैक्टर प्रेजेंट है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैं अभी आपको बताता हूं। इन्फ्लुएंस चौथा मोटिवेटर है कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करूं, लोग मुझसे प्रभावित हों, लोग मुझसे प्रभावित होकर के मेरी बात माने, मैं सबसे उच्च स्थान पर रहूं, मैं किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो इन्फ्लुएंस फैक्टर हमारे लाइफ में कितना मैटर करता है ये भी हमको जानना जरूरी है। फिर होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज इज नॉट ओनली अबाउट मनी कि भाई मैंने आपके ऑफिस में 1 महीना काम किया, आपने मुझे सैलरी दी, हो गया, सर्विस और मनी का एक्सचेंज। नो, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, exchange of expressions, exchange of culture, exchange of new thoughts, exchange of new cultural activities and so on. फिर होता है एक सिक्योरिटी कि भाई मैं तो बहुत सिक्योर स्थान होगा तो ही नौकरी करने जाऊंगी, या मेरा ऑफिस में ऐसी जगह ही खोलूंगी जहां प्रॉपर सिक्योरिटी हो, या मैं अकेले ट्रैवल नहीं करूंगी, कोई ना कोई मेरे साथ होना चाहिए, या फिर मेरा ट्रैवल प्लान ऐसा होना चाहिए कि मुझे पता हो कि एज सुन एज आई रीच टू एयरपोर्ट मुझे लेने कौन आ रहा है, कौन सी गाड़ी आएगी, वो गाड़ी प्रॉपर होगी कि नहीं होगी, कहीं रास्ते में खराब तो नहीं हो जाएगी, मेरे लिए जो होटल बुक किया जा रहा है वो होटल सेफ है कि नहीं है, मैं जिन लोगों से मीटिंग करने जाऊंगी वो लोग अच्छे हैं कि नहीं है। हजार तरीके के सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। और इसका अपोजिट है एडवेंचरस कि ठीक है जो होगा जो देखा जाएगा, मुझे तो जाना है, 4 दिन के लिए बॉम्बे जाने का मौका मिल रहा है, यस आई विल गो, कैसे भी लोग होंगे आई विल मीट एंड डील विद देम। लेकिन कुछ लोग जब ये क्वेश्चनर भरते हैं ना तो उनके टॉप 3 में ये दोनों ही होते हैं which is very strange, contradictory, yes. तो ये चीज हमको समझने की जरूरत है। एक होता है कम्युनियन। कम्युनियन मीन्स कम्युनिटी एक्टिविटीज, सोशल गैदरिंग जाना अच्छा लगता है, टीम वर्क करना अच्छा लगता है, मिलजुल करके काम करना अच्छा लगता है, पिकनिक मनाना अच्छा लगता है, घरों में पार्टी करना अच्छा लगता है, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना अच्छा लगता है। और एडवेंचर मैं बता ही चुका हूं कि कुछ भी नया काम हो, बिना डरे बिंदास कि नहीं यार करना है, मजा आएगा। किसी नई जगह पे ट्रैवल पे जाना है, किसी नए तालाब में छलांग लगानी है, बिना सोचे कि अंदर पत्थर होंगे कि मगरमच्छ होगा, कुछ नहीं, नहाना है तो नहाना है, कूद के नहाना है, तो ये एडवेंचरस होता है। और एक होता है एक्सपांशन कि मेरा जो माइंड है, मेरा जो ब्रेन है, वो हमेशा है कि यार मैं जो काम हाथ में लूं वो काम बिल्कुल सक्सेसफुल होना ही चाहिए। मैंने अगर आज एक छोटी कंपनी शुरू की है तो विद इन 3 ईयर इट शुड बी अ मल्टी मिलेनियर कंपनी। मैंने अगर आज किसी एक आदमी को शरण दी है तो वो आदमी इतना ग्रो करना चाहिए कि लोग देखें कि वाह यार इसके मेंटरशिप में ये आदमी ने कितना ग्रो कर लिया। तो
ये एक एक्सपांशन की मेंटालिटी होती है। अब आप देखिए, बिफोर आई गो and describe ki how we identify these people or these qualities within us, what are their negative and positive impacts, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर ये बताना चाहता हूं कि हर एक मोटिवेटर का अपना एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। और मैं पहले आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एक्सट्रीम, अगर आपको किसी ग्रुप में 7 में से 7 नंबर आए हैं, मतलब सातों स्टेटमेंट पे आपने टिक किया है, इसका मतलब यू आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन दैट मोटिवेटर। और अगर किसी ग्रुप में आपने 2 स्टेटमेंट पे टिक किया है तो यू आर एक्सट्रीमली नेगेटिव ऑन दैट मोटिवेटर। तो नाउ लेट मी डिस्क्राइब वेरी क्विकली कि यदि हम एक्सचेंज वाले मोटिवेटर की बात करते हैं और किसी को एक्सचेंज वाले मोटिवेटर में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, इसका मतलब यह है कि ही बिलीव इन गिव एंड रिसीव। उसको देना लेना अच्छा लगता है, किसी के बर्थडे पे गिफ्ट देना, दिवाली होली पे अपने एम्प्लॉइज को बोनस देना, आए दिन अपने ड्राइवर को बख्शीश देना, बच्चों को हर छोटी छोटी ओकेजन पे कुछ ना कुछ गिफ्ट लाके देना, और वापस कोई मित्र या रिश्तेदार उसको लाके देता है तो उसको अच्छा लगता है। तो गिव एंड टेक ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर यही एक्सट्रीमली नेगेटिव हो, अगर इस ग्रुप में आपके 1 या 2 स्टेटमेंट पे टिक हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति गॉसिपबाज हो जाता है। जहां मौका मिला गॉसिप चालू, जिसको हमारे राजस्थान में थारी मारी बोलते हैं, या ब्रॉडर टर्म में पंचायती बोलते हैं, कि पंचायती करना चालू हो जाता है कि अरे देखा तुमने, कल उसने ऐसी साड़ी पहनी थी, कल उसने ऐसा बोला, कल मैंने उसको वहां ऐसा देखा, परसों उसने नई कार खरीदी तो कितना इतरा रही थी, पड़ोस वाले वर्मा जी के यहाँ देखो मर्सिडीज आके खड़ी हो गई तो उनकी पूरी फैमिली में बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बस और किसी ने तो मर्सिडीज देखी नहीं। तो दिस इज गॉसिप। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे है तो हम गिव एंड रिसीव वाली मेंटालिटी को करेंगे। वी विल गिव देम द कॉम्प्लीमेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्मा जी, यू हैव गॉट अ मर्सिडीज, वाओ, हमारे भी पड़ोस में मर्सिडीज खड़ी रहेगी, अब हमें भी बड़े शान से कहने को मौका मिलेगा कि हमारे लोगों के पास मर्सिडीज है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव। सिमिलरली अगर किसी के चार्ट में सिक्योरिटी वाले में अगर टॉप मार्क्स आए हैं, यानी कि सिक्योरिटी वाले में अगर उसने 7-6 स्टेटमेंट्स पे टिक किया है, तो इसका मतलब दैट पर्सन बिलीव्स इन ट्रस्ट, he trusts anybody very blindly and we can trust that person very blindly. He is a trustworthy person. तो आगे से मैंने मेरे संपर्क में कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं और कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने रिक्रूटमेंट के सिस्टम में इस मोटिवेटर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को एडॉप्ट किया हुआ है कि वो सीवी तो देखते ही देखते हैं, साथ में ये सर्वे भी करवाते हैं। Quite और वो देखते interesting. हैं कि इस एम्प्लॉय को मैं अगर फाइनेंस में ले रहा हूं तो इसका कौन सा मोटिवेटर फैक्टर हाई होना चाहिए, कौन सा लो होना चाहिए। एडवेंचर वाले को फाइनेंस में कभी नहीं लेना चाहिए नहीं तो वो Yes. आपके सारे फाइनेंस को एडवेंचर में उड़ा देगा। True. तो सिक्योरिटी वाला जिसमें हाई है उसको फाइनेंस में रखना चाहिए, है ना। Okay. कम्युनियन वाला जिसमें हाई है उसको सेल्स एंड मार्केटिंग में रखना चाहिए। एक्सप्रेशन वाला, यस, एक्सप्रेशन वाला जिसमें हाई है या रिकॉग्निशन वाला जिसमें हाई है उसको एचआर में रखना चाहिए। तो ये सारे हैं, तो ये तो कभी अपन और आगे किसी में डिस्कस करेंगे, अभी तो अपन बेसिक बातें ही कर रहे हैं। दीज आर वेरी एडवांस लेवल थिंग्स। सो ओके, व्हेन सिक्योरिटी इज ऑन द टॉप मींस यू हैव टेक मार्क 7, 6 or 5 statements into the security group, that means you are a trustworthy person and you love the people who are trustworthy. लेकिन अगर इस सेगमेंट में आपके 1 या 2 स्टेटमेंट पे टिक हैं तो मान लो कि फियर, Okay. यू आर विक्टिम ऑफ फियर। आपको हर चीज में डर लगेगा, आपको कुछ भी करने से पहले ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, मैं अगर इसको नौकरी पे रखूंगी तो ये 2 महीने में भाग तो नहीं जाएगा, ये बेईमानी तो नहीं करेगा,
मैं ये प्रोजेक्ट या ये डील करूंगी तो मुझे इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मीन्स अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और फियर हावी हो जाता है. तो यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनीबडी थ्रू दिस सर्वे दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, और क्या मोटिवेटर आपको अफेक्ट करता है नेगेटिवली या पॉजिटिवली. थर्ड आता है अपना एडवेंचर. अगर किसी एडवेंचर ग्रुप में किसी के 7 में से 7 टिक हैं या 7 में से 6 टिक हैं या 5 टिक भी हैं, तो समझ लो कि he has presence of mind and he is full of presence. He want to live in present, whatever the right moment, current moment is his life. उसको जो गया वो गया, जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी है, उसको आज में जीना अच्छा लगता है. लेकिन अगर इस सेगमेंट में आपके 1 या 2 स्टेटमेंट पे टिक है तो फिर वो ड्रामेबाजी करेगा, फिर वो लफ्फाजी करेगा, फिर वो बोलेगा कि अरे ऐसा हो जाता, मैं ऑलमोस्ट रिजल्ट अचीव करने ही वाला था लेकिन ऐसा हो गया, मैं क्या करूं. मैंने तो रात दिन बहुत मेहनत करी लेकिन मैं क्या करूं. मैंने तो सर पूरी रात जग के प्रोजेक्ट टाइप किया, सवेरे मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, मैं क्या करूं. तो ये दोनों इम्पैक्ट हमको किसी एक पर्सन में देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते कि उसका हम प्रॉपरली मोटिवेटर टेबल को एनालाइज करें. चौथा आता है इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस वाला मोटिवेटर जिसके अंदर है, और अगर उसके उस ग्रुप बॉक्स में 7 आउट ऑफ 7 टिक मार्क हैं या 6 आउट ऑफ 7 टिक मार्क हैं, तो आप ये मान के चलो कि आप में ऑथोरिटी वाला गुण है. You can become, you can emerge as an authority. People will follow your instructions. People will, treat you as a good boss. You have the magic to influence other people. लेकिन अगर इसी बॉक्स में अगर आपके 1 या 2 टिक हैं या 3 टिक हैं, तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा. तो आपका एटीट्यूड बॉसी एटीट्यूड हो जाएगा. आई एम द बॉस, मैंने कहा वो सही है, बस तुमको समझ में नहीं आ रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मैंने बोल दिया ना कि ये काम करो जा करके तो करो. तो वो बॉसी एटीट्यूड आ जाता है. तो ये एक मोटिवेटर का इतना डिफरेंस है कि अगर आप में हाई लेवल पर है वो, तो आप एक अलग तरह के पर्सन हैं, और वही मोटिवेटर अगर आप में लो लेवल पर है तो आप एक डिफरेंट तरह के पर्सन बन जाते हैं. और why I am going into that detail, because this is not a right platform where we can discuss the survey individually. True. So everybody have their copy, they can see their boxes and they can evaluate yourself. तो आप लोग अपने अपने सर्वे को खुद कंडक्ट करते देखते हुए आप उसको अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो. आप जान सकते हो कि आप किस पाले में खड़े हो अभी, और अगर लगता है कि हम किसी नेगेटिव साइड में खड़े हैं, तो देन वी नीड टू वर्क हाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड. देयर आर वेज, देयर आर ऑफ कोर्स various exercises through which we can convert ourselves from negative side to positive side. Now talking about expression. Expression वाले बॉक्स में जिसके 7 में से 7 टिक है या 7 में से 6 टिक है या 5 भी हैं, तो मान के चलिए कि आप बहुत क्रिएटिव हैं. आप कचरे से भी व्हाट यू से, एक कहावत है ना अंग्रेजी, निकाल सकते हैं. हाँ, नहीं वो मैं भूल गया. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. Yes. So you can create best out of waste. So अगर आप में एक्सप्रेशन वाले कॉलम में 7, 6 या 5 टिक हैं, तो मान करके चलिए कि आप क्रिएटिव हैं. अब आप क्रिएटिविटी दर्शा पा रहे हैं कि नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्रिएटिव हैं. और अगर आप ये जान गए कि आप क्रिएटिव हैं, तो आप क्रिएटिव वर्क ज्यादा हाथ में लेंगे, तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी. और उसी बॉक्स में अगर आपके 1, 2 या 3 टिक हैं, तो वही क्रिएटिविटी आपके झूठेपन में बदल जाती है. यू बिकम अ लायर.
हर बात में आप झूठ बोलेंगे, आपकी सारी कलाकारी जो है वो चीजों को कैसे गोलमोल करके घुमाना है उसमें चली जाएगी। तो इतना इम्पैक्ट आ जाता है एक नेगेटिव और पॉजिटिव होने का। एंड व्हाई वी हैव केप्ट 7 स्टेटमेंट ओनली। 7 स्टेटमेंट रखने का पर्पस ही यही है कि या तो 7 होंगे या 6 होंगे या 5 होंगे, तो कहीं ना कहीं एक पलड़ा भारी होगा, एक पलड़ा हल्का होगा। अगर हमने 8 रख लिए तो 4-4 बंट जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, 10 रख लिए तो 5-5 बंट जाएंगे, तो नहीं। इसलिए हमको अच्छे से हमने इसको एक्सरसाइज को प्रिपेयर किया हुआ है। तो एक्सप्रेशन वाले बॉक्स में आपके कहाँ टिक हैं वो जानना देखना बहुत जरूरी है। आप अपने अपने एक्सप्रेशन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा कि उसमें आपने 1 टिक 2 टिक किया है या 7 के 7 टिक किया है। देन कम्स फ्रीडम। फ्रीडम की अगर हम बात करें और फ्रीडम वाले बॉक्स में आपके अगर 7 में से 7, 6 या 5 टिक्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। You do not love to be governed by somebody else. You do not want any boss upon you. चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो। अगर आप पति हैं तो भी घर में आपकी चलेगी, आप पत्नी हैं तो भी घर में आपकी चलेगी। और अगर मान लो आपके पति के भी उस बॉक्स में 6 या 7 टिक हैं, तो सोच लो चुंबक के 2 पॉजिटिव ध्रुव कैसे मिलेंगे। तो कॉम्पेटिबिलिटी मैचिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि घर हो या दफ्तर, हम एक ऐसी कॉम्पेटिबल टीम बना सकते हैं इस एक्सरसाइज के जरिए कि उस टीम में बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन हो, जहां एक चीज किसी में पॉजिटिव है तो दूसरी चीज किसी में नॉर्मल या नेगेटिव हो, तो वो अच्छे से मैच कर सकते हैं। और अगर ये फ्रीडम में मान लीजिए कि आपका 1 या 2 या 3 टिक मार्क ओनली है, तो मान के चलिए कि आपके कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। यू आर ए नॉन कमिटल पर्सन। आपके कमिटमेंट पर आपको खुद कोई भरोसा नहीं होता है, आप खुद टालने के लिए बोल देते हैं हाँ ठीक है यार कल कर लेंगे ऐसा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि करना नहीं है। तो इस तरीके का मैसेज हमको इस एक्सरसाइज से मिलता है। फिर आता है एक्सपांशन। एक्सपांशन में अगर हम बात करें कि अगर एक्सपांशन वाले बॉक्स में हमारे 7 आउट ऑफ 7 टिक मार्क हैं या 6 आउट ऑफ 7 हैं, तो डेफिनेटली वी आर अ पर्सन हु लव प्रॉस्पेरिटी, हु क्रिएट प्रॉस्पेरिटी। हम प्रॉस्पेरिटी ओरिएंटेड पर्सन हैं। लेकिन अगर उसी बॉक्स में हमारे 1, 2 या 3 टिक हैं, तो हम होंगे तो प्रॉस्पेरिटी, लेकिन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की तरफ हम भागेंगे। और द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, द ग्रोथ विच यू कैन नॉट कंट्रोल विल डैमेज योर लाइफ। तो इसमें हमको सतर्कता रखनी है कि हमें इस वाले मोटिवेटर को बहुत सावधानी से यूज करना है। अगर हमारा इसमें माइनस है तो डेफिनेटली हमें वर्क करना चाहिए कि कैसे इसमें हम अपने मार्क्स बढ़ाएं। 8 जो है अपना है रिकॉग्निशन। अगर रिकॉग्निशन वाले कॉलम में आपके 7 आउट ऑफ 7 या 6 आउट ऑफ 7 या इवन 5 आउट ऑफ 7 टिक मार्क हैं, तो आप एक्सेसिबल हैं, मीन्स एनीबडी कैन अप्रोच टू यू, you will be able to listen to anybody, you will give value to others expressions, opinion, you will give value to others contribution, and you will be very kind to other people. But at the same time, if it is negative side, you have only 1, 2 or 3 tick marks on recognition side, then you will become manipulative. आपका मैनिपुलेशन वाला पावर जो है वो बढ़ जाएगा एकदम से। तो अगर आप मैनिपुलेटिव हैं तो मान के चलिए कि आपको इस मोटिवेटर पे काम करना है और आपको एक्सेसिबल बनना है। और 9th जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कम्युनियन वाला। अगर आपको कम्युनियन वाले बॉक्स में 7 आउट ऑफ 7 हैं या 6 आउट ऑफ 7 हैं, तो यू आर अ पर्सन हु लव शेयरिंग। आपके पास जो भी है
आपको शेयर करने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो खाना है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपका टाइम है, चाहे वो आपकी स्किल्स है, वॉट एवर यू हैव, यू लव टू शेयर अमंग योर पीपल। आप अपने फैमिली में बांटना पसंद करेंगे, आप अपने परिचितों में बांटना पसंद करेंगे, आप अपने कुलीग्स को, स्टाफ मेंबर्स को, तो यू विल बी शेयरिंग विथ एनीबडी। लेकिन अगर इसी बॉक्स में आपका टिक मार्क 1, 2 या 3 तक लिमिटेड है, तो यू आर इनडिस्क्रिमिनेट, you become indiscriminate, and indiscrimination is not a good sign at all. So definitely, if we find ourselves in the bottom, then we need to improve ourselves. If we find ourselves on the top, we need to maintain that. अब मैं क्विकली जो है, we will try to understand one by one कि हर एक जो मोटिवेटर है हमारा, उस मोटिवेटर वाले लोगों को पहचाने कैसे, क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं। हम अपने आप पे भी वो प्रयोग कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों पे भी वो प्रयोग कर सकते हैं, अपने स्टाफ के लोगों पे भी कर सकते हैं, अपने घर के मेंबर्स पे भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स पे भी कर सकते हैं, नेबर्स पे भी कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई देम थ्रू सर्टेन सिंबल्स और सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न्स। कि जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ रिकॉग्निशन वाले की, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन मोटिवेटर इज रिकॉग्निशन, कि अगर हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये अच्छे से काम करेगा, या मैं ऐसा पर्सन हूं कि मुझे रिकॉग्निशन अच्छा लगता है। तो सबसे पहली बात ये कि दे आस्क यू हाउ यू फील। सबसे बड़ा क्वालिटी कि अगर आप भी किसी काम को करते समय, किसी इवेंट को अटेंड करने के बाद किसी प्रॉब्लम से जूझते समय दूसरों से पूछो कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है, आर यू कंफर्टेबल, आर यू ओके, आर यू विथ मी, मीन्स यू आर अ पर्सन हु गिव वेटेज टू रिकॉग्निशन। क्योंकि जो खुद रिकॉग्निशन चाहता है वो दूसरों को भी रिकॉग्नाइज करता है, ये बहुत बड़ा एक संकेत है। दूसरा सिंबल जो है कि दिस काइंड ऑफ पीपल एंजॉय गेटिंग टू नो द पीपल अराउंड देम। वो कभी चुपचाप बैठ नहीं सकते, वो अगर फ्री बैठे हैं 5 मिनट तो वो 5 मिनट में 2 लोगों से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी है, कैसे वो हमारे काम आ सकते हैं या कैसे हम उनके काम आ सकते हैं। मतलब वो नेटवर्किंग बढ़ाने में विश्वास करते हैं। और तीसरा एक जो सिंबल होता है आइडेंटिफाई करने का कि दे नीड अ लॉट ऑफ फीडबैक। आज मैंने ये साड़ी पहनी कैसी लग रही, आज मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, आज मैं जो मीटिंग में मैंने भाषण दिया वो कैसा था, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। तो दे लव टेकिंग फीडबैक अबाउट देमसेल्व्स। तो अगर आप में भी ये क्वालिटी है कि अगर आपको अपना फीडबैक लेना अच्छा लगता है, दैट मीन्स योर रिकॉग्निशन इज योर मोटिवेटर। अब इस तरह के लोगों की पॉजिटिविटी क्या है, प्लस पॉइंट क्या है ऐसे लोगों में? प्लस पॉइंट ये है कि दे आर इजी गोइंग, दे आर वार्म एंड दे आर फ्रेंडली। उनको कोई ये टिपिकल पर्सनालिटी में वो बिलीव नहीं करते। दे आर वेरी इजी गोइंग, देन दे आर वार्म एंड फ्रेंडली, दे आर अप्रूविंग ऑफ अदर्स एंड अनसेल्फिश। वो दूसरों के काम को क्रेडिट देने वाले होते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं होते हैं। एंड दे आर ग्रेट कोलैबोरेटर्स। वो लोग किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से लोगों की मदद से करवाने में सक्षम होते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है कि कभी कभी वो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। अगर उनके उस बॉक्स में 1 2 3 वाला स्कोर है तो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। और अगर हम उनको पहचान पाए तो अच्छी बात, नहीं पहचान पाए तो प्रॉब्लम। सो आई हैव ट्राइड to explain all these 9 motivators in very brief way. Now we are close to 1 hour. I believe if I will start another chapter, it will take a lot of time. So may I request Yuti madam that
We can stop here, or we should continue, whatever. Uh, uh, See, it is 1 hour, but Yeah. people who are interested can definitely contact you for the same. The ways to find out motivators. They have already known what are the motivators, and I request our members who are having that questionnaire, they can fill it again with conscious efforts, and And they can yeah, I will add to it that it is not for anybody else. It is for yourself only. right, true. So if they can get to know the motivators, and then if they can get your guidance in personal manner, that would also be fine. I will be happy to assist and extend any kind of support which is required by you. Right. Because this is such a topic, we conduct a Yes. 1 day workshop on it. Yeah, and it is So interesting as well. So, there yeah, are of so many course. other aspects of it. How our motivators affect us at workplace, that is a separate thing. How they affect us Right, in our family and relationship life, that is second right. thing. And how we can make a super combination of both to make our life very easy and successful. Uh, That's very uh, much required, in fact. yes. So I believe I will be, really uh, seeking apologies, because this topic I really cannot cover within that short time. But No, no, that's I have tried. absolutely fine, in fact. But I And have we tried could to know, yeah, cover yeah, all the nine motivators yes, with their true, positive and negative aspects. So very true. now I believe that all the audience are able to evaluate themselves without the help of any other person. You can always find something about you, and wherever you need our assistance, our support, we are there. And I would request Yuti madam, because I do not have any option here to write the message, so you can mention my WhatsApp number and email ID. So if anybody want out of the audience, they can Certainly, approach. So thank you certainly. very much for giving this opportunity, creating this opportunity, and thank you one and all audience who are here despite of their busy schedule. And thank you the state president of Wiki, Madam Yuti It was Dholakia a ji, pleasure having that you. you created this opportunity, and you considered me to be among you. So thank you once again. Thank you very No, much to it, all of it, you. it was really indeed an insightful session, and I hope it would be the it would help the viewers finding their motivators and applying the same practically to achieve personal and professional excellence. And sir, on behalf of the entire council, I thank you for sharing precious knowledge. We hope to have more such insightful sessions with you in coming time. And yes, of course, Definitely. we are thankful to the viewers as well for being throughout with us during the session. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. It is always my pleasure. And Thank I you for your really time and efforts, express both. thanks for the people who have made so many positive comments here, I can see. So this Yes, really yes. motivates. This is one of my motivator. True, true. And today's session was itself a motivator for us. So that is an added numbers in that Exactly. 9 motivators. Correct. Right. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, sir. Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. With these lines of Oprah Winfrey, we are ending up this session. Hope you all enjoyed it. Have a wonderful weekend. Bye bye. Thank you.